دیکھنا ہے 11:30 بجے کر رہے ہیں. تو امت مسلمہ پر تیار ہے. ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. فرانس کے سفیر کا مسئلے کو عزت کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کے کوئی نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو روکتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اپنے رسول اللہ کی عزت و ناموس اول ہماری زندگی آباد ہے. اگر ہمارے پیغمبر کا ناموس محفوظ نہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا ہے اور اب اس میں مصلحتوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. میں پنجاب پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کے وہ احکامات جو پوری دنیا میں ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، پنجاب پولیس اپنے افسروں کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے سے باز آ جائے. یہ ان کے نجات کا راستہ ہے. جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر ناقابل برداشت، وہ انسانی مناظر نہیں. یہی مناظر جب کشمیر میں ہوں گے تو آپ کہیں گے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی. یہی صورتحال جب فلسطین میں ہوگی تو آپ کہیں گے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی. تو پھر اگر پاکستان کی ریاست اور اس کی ریاستی ادارے اور اس کی ریاستی قوتیں اپنی قوم کے اوپر اس طرح گولیاں چلاتی ہیں، بختر بند گاڑیاں ان کے اوپر چڑھاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو ریاستی دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ حکمران اور ان کے وزراء سن لیں، ہمارے نزدیک پی ٹی آئی اور ان کے وزراء دہشت گرد، رسول اللہ کی ناموس کے لیے لڑنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے. کیا حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہم اس ملک میں غیر آئینی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے، ہمیں آج تک بھی نہیں. لاہور میں یزید کی یزیدیت نے جو کربلا برپا کی ہے، آج وہ بے نقاب ہو گئے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان معاہدات کے فریق کون ہیں؟ ان معاہدات کی عبارت کیا ہے؟ ان معاہدات کے نکات کیا ہیں؟ ان معاہدات پر دستخط کرنے والے کون ہیں؟ ساری تفصیل پارلیمنٹ میں جائے، عوام کے سامنے جائے. دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کرنے والا بھی تو دہشت گرد ہی کے زمرے میں آئے گا. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو عقل مندی کے ساتھ حل کرنے کی طرف اقدامات کیے جائیں. ہر چند کے مسئلہ جذباتی ہے، ہر چند کی ریاست کی طرف سے ظلم ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے مسئلے کو سنبھال لو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹی این پی کے شہداء کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. بہت سے علماء اس وقت گرفتار کیے جا رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق فلپین کے ساتھ ہے یا نہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب گرفتار ہیں،
क्यों, किस बात? किसी ने बयान दे दिया उनके हक में, हमारे ही कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बाबा हमें हाथ मत डालो, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हम जिंदा लोग हैं, हम मैदान के लोग हैं, और तुम जैसे लोगों के साथ मैदान में झपटना जानते हैं। हमने हमेशा अमन और नज़्म ज़ब्त को बजाया है। हमने 14 मिलियन मार्च किए, आज़ादी मार्च किया। हमने दुनिया को बता दिया कि मजहबी लोग किस कदर मुनज़्ज़म होते हैं और किस कदर वो पाकिस्तान के अमन की हिफाजत करते हैं। लेकिन शायद आपको मजहबी लोगों की अमन पसंदी कबूल नहीं। आप हर कीमत पर दुनिया के सामने मजहबी दुनिया का एक तस्वीर पेश करना चाहते हैं जैसे बड़े दहशतगर्द हो। आज भी जो तुमने किया है लाहौर में, तुमने अमेरिका और मगरबी दुनिया के सामने मजहबी लोगों की एक तस्वीर रखने की कोशिश की। लेकिन हम न पहले दिन से मरूब हैं इस फलसफे से, न आज मरूब हैं। हम बड़े खुददारी और खुद एतमादी के साथ इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, और हम बड़े दो टोक अल्फाज में आपको कहते हैं कि तुम दहशतगर्द। और इंशाअल्लाह आपके खिलाफ ये जंग पहले दिन से शुरू हुई है, अब तक जारी है, और इंशाअल्लाह तुम्हारे इख्तिदार का सर तख्ता होने तक ये जंग जारी रहेगी। मगरबी दुनिया से इख्तिलाफ को हम जानते हैं, मगरबी दुनिया भी जानती है कि मुसलमान एक कौम है, मुसलमान एक उम्मत है, मुसलमान अपनी तरजीहात रखते हैं, उम्मत अपनी तरजीहात रखती है। और जहां पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तसव्वुर होगा और नामूस का मसला आएगा, मुसलमान सब कुछ लुटा देगा। मौलाना खत्म नबूवत के साथ साथ मजहबी जो फोर्सेज हैं, मजहबी जमातें हैं, उनको कुचलने के लिए ये ज़ाहिर ये तो एजेंडा है पहले दिन से। 9/11 के बाद मुस्लिम दुनिया की रियासतों की भी यही ड्यूटी लगाई गई है कि अपने अपने मुल्क के मजहबी हल्के और दीनी हल्के को कुचलना। लेकिन इंशाअल्लाह वो नहीं है, मुशर्रफ नहीं है, और हम मौलाना आप समझते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये सब भी इन्हीं नुकात पे आपके पीछे चलेंगे और कोई ऐसी चीज़ जो बैरूनी दुनिया की है वो उससे मरूब नहीं होंगे, या सिर्फ मजहबी जमातें ही इकट्ठे होंगी? मैं इस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमन के प्रधानों से गुफ्तगू कर रहा हूँ और अपना नुक्ता नज़र दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि जो हमारी सोच है वो हर मुसलमान की सोच है। इस सोच से इख्तिलाफ अगर कर सकता है तो या पीटीआई कर सकती है या उसके सरपरस्त कर सकते हैं। आज मुशावरा से तो कहा जाता है कि उनके बयान ना चले, और दूसरी तरफ साथ रिजवी साहब के जोर दिया जाता है मीडिया पे कि उनका बयान चले, तो इस पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मीडिया को आज़ाद होना चाहिए और मीडिया को ये सारी खबरें चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये जो पाबंदी लगाई गई है, अगर इनके इक़दामात कोई जायज़ होते, अगर इनके इक़दामात की पब्लिक में कोई मकबूलियत होती तो आज वो मीडिया से कहते कि चलाओ, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अवाम से मुंह छुपाने के लिए उन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगाई हुई है कि आपने ये मनाज़िर नहीं दिखाने। मौलाना साहब, ये आपने मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या आपने पीटीएम या बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं इस स्पेसिफिक इस मसले के ऊपर उनसे रब्ता किया है कि ये एक जो सूरत मैं जो बात इस वक्त कर रहा हूँ, मैं एक बड़े जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ और हम प्राप्त करेंगे भी, लेकिन इस वक्त इनिशियल जो एक रद्द-ए-अमल हम दे रहे हैं वो इस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल का है, और एक मजहबी जमात के नाते एक दूसरे मजहबी जमात के साथ जो जुल्म हुआ है उस पर हम अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। हड़ताल का ऐलान किया है कि आप उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करें,
रहना और हमारी सोच एक है। मौलाना साहब करते हैं पीटीएम की जी जमात के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है आप उसके नुमाइंद के साथ करते हैं टीएलपी की। मौलाना साहब से मेरा सवाल ये वही है, बात की है ना। मौलाना साहब मेरा सवाल ये है कि ये लोग सियासत में नहीं थे, अचानक एक सियासी जमात बनी, उसको इलेक्शन लड़ाया गया और अब उस पर अचानक से पाबंदी लगवा के मैं किसी जमात के दाखिली मामलात, उसकी तंजीम, उसके क़याम, उसकी तसलसल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जिसके साथ भी पाकिस्तान के एक जमहूरी माहौल में किस किस्म का वाक़या होगा, जिस तरह लाहौर में कब्ज़े हो रहा है, तो फिर उस पर हम मौलाना एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि ये जो आज का वाक़या है, स्पेसिफिक आज का वाक़या, ये ख़त्म नबूवत के साथ लिंक तो किया जा रहा है, लेकिन ये सदर रिजवी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ है बेसिकली। ये एक सवाल डिस्कस किया जा रहा है। अब जाहिर है कि इस किस्म के इक़दामात में जब लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे, जब लोगों पर गोलियां चलाएंगे, तो उसका पीछे कोई सबब होगा, कोई वजह तो होगी। इस तरह तो नहीं है कि आप किसी को मसला से जाते हुए कत्ल भी कर दें और उसको रात भी खींच लें। और ये तो मौलाना साहब जरूर उसके पीछे कोई मकासद। देखिए, आप जमहूरियत की बात करते हैं और अभी आपने कहा कि जमहूरी जहाँ पर बात की जाएगी तो हम इन चीज़ों की मजम्मत करेंगे। उन्होंने भी एक जमहूरी तौर पर एक स्ट्रगल की और सियासी धारे में आने की कोशिश की। 2.5 साल या 3 साल हो गए, उन्होंने भी जब सियासी धारे में आके स्ट्रगल की तो आप लोगों की जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ पोलिटिकल फोर्स। इसकी क्या वजह थी जो आप अब जाके उसको एक्सेप्ट किया? देखिए, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं एक ख़ास मौके के ऊपर, आपको याद होना चाहिए कि जब 2 साल पहले हमने सबसे पहला मिलियन मार्च किया गालिबन सक्खर में, उस वक्त मरहूम खादिम रिजवी साहब गिरफ्तार हुए थे और उस पहले मिलियन मार्च में हमने उनके साथ यकजहती का इज़हार किया था। ये नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ किया जा सकता है, उसके मकासद क्या है, उससे आपका इत्तेफाक है या नहीं है, लेकिन अगर एक मुल्क के अंदर पीटीएम जैसी कौम परस्त, इंतहा पसंद, दहशतगर्द तंजीमें पनप सकती हैं, तो फिर एक मजहबी जमात के लिए गुंजाइश करें। क्या इन्हें पीटीएम में शामिल होने की दावत दी थी आप, या जो आप फ्री एंड फेयर अलायंस बनाया था? अच्छा मौलाना, आज कौन कौन शरीक हुए मशावरत की आपने में की जमातें कौन कौन सी जमातें? मेहरबानी, आपको मैं दरवाजे से बाहर छोड़ दूंगा। जगह नहीं दे रहे इसलिए ये फरमाएं कि ये आपको साइड में हो जाए ना, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, छोड़ दें। ये फरमाएं कि हम तो मुत्तहिदा मजलिस अमल को भूल चुके थे, जमात इस्लामी भी छोड़ चुकी थी, कोई भी नहीं था, ये आज मुत्तहिदा मजलिस अमल कहाँ से निकल आई? बहुत अच्छी बात है, यही यहाँ से तवक्को थी।